Hello students, welcome to NCHS e-learning. Today we are going to know how you should prepare for your board exams, and we will start with the blueprint of accountancy. As you know that in accountancy you are having three books, book 1, book 2 and book 3. Book 1 consists of accounting for non-profit organization and partnership firm. In this you are having 7 chapters, and in between these 7 chapters the first chapter is financial statement of non-profit organization. In this chapter you are going to study about the accounting treatment of non-profit organizations such as gyms, clubs, schools, beauty parlors, etc. So this chapter contains 10 marks. This whole chapter contains 10 marks, and you are going to get, surely you are going to get 1 mark के 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर. इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क के. सो यू हैव टू रीड वेरी थॉरली दिस चैप्टर. अगर आपने इस चैप्टर को डीप स्टडी नहीं किया तो आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस जो हैं वो रॉन्ग हो सकते हैं. यू विल नॉट बी एबल टू सिक्योर फुल मार्क्स इन दिस चैप्टर. नेक्स्ट इज द अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स. देन फ्रॉम दिस चैप्टर यू विल गेट 1 मार्क का 3 mark का 1 question. You will get only 1 question from this of 3 marks. In this chapter you must be knowing that P&L appropriation account and partners capital account was made. So from this chapter you will be getting 3 marks का only 1 question. Then valuation of goodwill, from this chapter you are going to get 4 marks के 2 questions. So this chapter का weightage is 8 marks. So you have to prepare, you have to study all the types of valuation of goodwill like super profit method, average profit method, capitalization method, weighted average profit method. All the 4 topics you have to cover, because you are going to get 2 questions of 4 marks from this chapter. Change in profit sharing ratio, admission of a partner, from this chapter you are going to get 2 questions of 6 marks. In this sacrificing ratio and P&L revaluation account and partners capital account is being made, and the adjustment of capital is being omitted this year. So don't study adjustment of capital in any of the partnership, nor in admission, nor in retirement, nor in dissolution of the partnership firm. Retirement and death of the partner and dissolution of partnership firm, this is very important. These 2 are very important chapters, because from this chapter you are going to get 1 mark, 8 mark का 1 question, and you will get internal choice whether you have to do the question of retirement or death, or you have to do 1 question of dissolution. So internal choice will be there between these 2 chapters. Understood? So the total weightage of this book is 40 marks, 10 marks for your non-profit organization and 30 marks for your partnership. So total weightage of this whole book, book 1, that is accounting for non-profit organization and partnership, is 40 marks. अब हम बुक 2 के बारे में डिस्कस करेंगे. बुक 2 में हमें ये पढ़ने को मिलेगा कि कंपनीज़ का अकाउंट्स कैसे बनते हैं, कंपनीज़ में किस किस तरह के अकाउंट्स बनते हैं. इसमें 3 चैप्टर्स हैं. पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, दूसरा है इशू ऑफ डिबेंचर्स, एंड तीसरा कैपिटल है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. सो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में से आपका एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का आएगा ही आएगा. तो इसका वेटेज, इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है. 3 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, और 2 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क का. इशू ऑफ डिबेंचर में से एक ही क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में से 8 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा. सो अब जैसा कि आपने देखा, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में 1 क्वेश्चन है 8 मार्क्स का, और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में से 1 क्वेश्चन है 8 मार्क का. इसका मतलब इन दोनों चैप्टर्स के बीच में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी. या तो आपको इसका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का क्वेश्चन आंसर लिखना, सोल्यूशन करना पड़ेगा, या फिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का सोल्यूशन करना पड़ेगा. सो आप इस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं. जो आपको इजी लगता हो आप उसको अच्छे से थॉरली कर लीजिए, ताकि आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकें. अब हम तीसरी बुक पे आते हैं. तीसरी बुक हमारी है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इस बुक में भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंपनी ही पढ़ते हैं, फर्म का नहीं पढ़ते हैं. इसमें फर्स्ट हमारा चैप्टर, इसको मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड किया है, चैप्टर वाइज डिवाइड नहीं किया है. तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस शीट, जिसमें से एक क्वेश्चन 4 मार्क का आएगा ही आएगा.
देन कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज स्टेटमेंट, इनका में से एक या तो कंपैरेटिव या कॉमन साइज में से एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, एंड रेशियो एनालिसिस से भी 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एंड लास्ट चैप्टर है हमारा इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें से जिसका वेटेज है 8 मार्क्स का। अब यहाँ अगर ये 8 मार्क का है, इसका मतलब ये नहीं 8 मार्क के आपके 2 ही क्वेश्चंस आएंगे, तो ये 6 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा 2 मार्क का दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, या 4-4 मार्क के 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये डिपेंड करता है, ठीक है। सो पर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरी बुक में सबसे ज़्यादा वेटेज कैश फ्लो स्टेटमेंट का है। सो एडजस्टमेंट वाले जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप ज़रूर कीजिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से। सो जैसा कि आपको मैंने एक्सप्लेन किया तीनों बुक्स के बारे में, तो हमारी पहली बुक होती है 10 and 30, 10 मार्क्स का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड 30 मार्क्स का आपका पार्टनरशिप है, 40 मार्क्स की फर्स्ट बुक है, देन 20 मार्क्स की आपकी सेकेंड बुक है, एंड 20 मार्क्स की आपकी थर्ड बुक है। तो तीनों बुक्स को मिला के आपके हो गए 80 मार्क्स, एंड आउट ऑफ ये 80 में से ये आपकी मार्किंग स्कीम है, मार्किंग स्कीम है। 20 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क के, देन 2 क्वेश्चंस आएंगे 3 मार्क्स के, 5 क्वेश्चंस आएंगे 4 मार्क्स के, 3 क्वेश्चंस आएंगे 6 मार्क्स के, एंड 2 क्वेश्चंस आएंगे 8 मार्क्स के। 80 हो गया। और प्रैक्टिकल आपका अकाउंट्स का होगा विच विल बी ऑफ 20 मार्क्स। टोटल आपके मार्क्स 100 हो गए। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल आपका पूरा का पूरा इस थर्ड बुक पे बेस है। फर्स्ट आपका प्रैक्टिकल है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट, सेकेंड इज रेशियो एनालिसिस, एंड लास्ट प्रोजेक्ट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो आपकी 20 मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं? 4 मार्क्स की आपकी फाइल होगी, 4 मार्क्स का वाइवा होगा विच विल बी टेकन बाय एन एक्सटर्नल, एंड 12 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा। और इसमें 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा रेशियो से और एक क्वेश्चन आएगा कैश फ्लो से। सो ये आपके प्रैक्टिकल के 20 मार्क्स डिवाइड हो जाते हैं। विद दिस वी हैव एंडेड अवर वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स डाल सकते हैं। विल क्लियर योर ऑल डाउट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।